Good afternoon, everyone. Okay, let me see who all have joined. Let's wait for another minute for everyone to join and then we'll begin. Okay, I'm locking the meeting now. Now, those who want to join the discussion can click on raise hands. Those who want to join the discussion can click on raise hands. Good afternoon, Dia. Good afternoon, sir. Good afternoon, Madhav. Good afternoon, sir. Good afternoon, Saksham. Good afternoon, sir. Good afternoon, Utkarsh. Good afternoon, sir. Good afternoon, Tejas. Good afternoon, sir. Good afternoon, Nikhil. Good afternoon, sir. Okay, shall we begin now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. What we discussed in the previous class? Impact of new economic policy on business. Yes. And then we discussed, we took an example where you had to organize a picnic. Remember that? Yes, sir. Sir. This was briefly what we discussed, that we decide the place, amount to be collected, then we divide the work, right? Someone has to arrange transport, someone refreshment, someone to collect money, like this. Then we discussed that
various tasks that we have identified, they need to be allotted to suitable persons. Then after that, allotting the task, we give instructions to everyone as to what exactly and how they have to do. Then if any problem arises, we take necessary corrective actions. This is what we discussed. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Then we discussed that the deciding and in advance part is called planning. Then dividing the work into various tasks is called organizing. Then appointing suitable people on various task positions, various job positions, that is called staffing. Staffing. Giving instructions to these people, it is called directing, guiding them, motivating them. And if any problem comes, taking a corrective action is called controlling. And this whole process Yes, of sir. planning, organizing, staffing, directing, and controlling, this is called Management. management, Management. right? This we had discussed. Yes, Any sir. doubt Yes, in it? sir. Yes, sir. So management comprises basically of 5 main functions: planning, organizing, staffing, directing, and controlling, Control. right? Controlling. Okay. So now we will discuss in detail what management is, what are its features. In all our daily life activities, we require management. Knowingly or unknowingly, हम अपनी सारी एक्टिविटीज में प्लानिंग करते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, कुछ डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग करते हैं. और जब भी हम बेसिकली जब भी कोई काम हम सिस्टमैटिक वे में करते हैं, दैट मीन्स वी आर मैनेजिंग. और जब भी कोई काम हम अनसिस्टमैटिकली करते हैं, इल प्लान्ड मैनर में करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में करते हैं, मीन्स वी आर नॉट मैनेजिंग आवर टास्क और एक्टिविटीज प्रॉपरली. ठीक है. और जब भी हम कोई काम वेल मैनेज्ड वे में करेंगे, मतलब प्रॉपर प्लानिंग के साथ करेंगे, प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग वगैरह के साथ करेंगे, द चांसेस ऑफ सक्सेस इंक्रीज. ऑन द अदर हैंड, if we do not manage our activities properly, then our chances of failure increase. You might have observed there are some people who manage all their activities very well, बहुत systematic way में काम करते हैं. And you will realize कि इन लोगों की ज्यादातर activities बड़ी successful होती हैं. On the other hand, there are people who do not manage their activities well, जो अच्छे से प्लान नहीं करते, बड़े अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, कोई भी चीज कहीं भी रख दी, फिर ढूंढ रहे हैं जब जरूरत पड़ रही है. तो इस तरह के लोग जनरली बहुत सी एक्टिविटीज में सक्सेसफुल नहीं हो पाते. सो मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज इन्वॉल्व्ड इन ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ आवर लाइफ. We should learn to manage all our daily life activities well. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Now, sir. Yes, sir. yeah. Now we come to the definition of management. Management is the creation and maintenance. Creation and maintenance. कुछ create करना और उसे maintain करना. किसको? An internal environment in an enterprise. एक एनवायरमेंट, एक अच्छा एनवायरमेंट क्रिएट करना और मेंटेन करना एंटरप्राइज में, वेयर इंडिविजुअल्स वर्किंग इन ग्रुप्स. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देयर में बी सेवरल इंडिविजुअल्स वर्किंग, बट दे आर नॉट वर्किंग इन इंडिविजुअल कैपेसिटी, दे वर्क इन टीम्स, दे वर्क इन ग्रुप्स. सो वेयर इंडिविजुअल्स वर्किंग इन ग्रुप्स कैन परफॉर्म एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली towards the attainment of group goals. जो उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन्हें इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर पाए, ऐसा एटमॉस्फेयर बना के रखना, मेंटेन करके रखना ऑर्गेनाइजेशन में. दैट इज मैनेजमेंट. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay.
Now we come to the characteristics of management. कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स मैंने आपको बताया था पहले भी, हम डेफिनेशन के एक एक वर्ड को एक्सपैंड करते जाएं तो वो फीचर्स बन जाते हैं मेनली. सो फर्स्ट फीचर इज okay, can you list what can be the various features, characteristics? The Maintenance of an appropriate environment. Yes. What else? Group activity. It is a group activity. Yes. What else? The perform efficiently and Sir, And effectively. Efficient and effectiveness. Mm-hmm. sir, in a proper manner or Yes. Arshit, you want to say something? particular manner. Yes, Arshit, you wanted to say something. सर वो गलती से माइक अनम्यूट हो गया, तो आपने कहा था जिनको पार्टिसिपेट करना है सर, मैं तब से हैंड रेज करा. अच्छा, तो अब आप आगे हो डिस्कशन में, कुछ कहना है? नहीं सर, आप कंटिन्यू करो, मैं फिर आगे. Okay, Jayant, you want to say something? नहीं. Okay, let's continue. हैंड को लोअर कर दिया करो अगर किसी टाइम आपने रेज किया है और उस टाइम आपका डाउट क्लियर हो गया या व्हाटएवर, तो थोड़ी देर बाद लोअर कर लिया करो फिर. ओके. सो फर्स्ट फीचर और कैरेक्टरिस्टिक. रिमेंबर, व्हेनेवर यू आर आस्क्ड कैरेक्टरिस्टिक, फीचर, जनरली द पॉइंट्स आर सेम. तो फीचर्स पूछ लें, चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लें या नेचर पूछ लें, अनलेस एंड अनटिल किसी टॉपिक में नेचर अलग से दी हो जो मैनेजमेंट में आएगा तो अलग पॉइंट्स रहेंगे. अदरवाइज नेचर, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स सेम पॉइंट्स रहेंगे. इसी तरह से इंपॉर्टेंस, बेनिफिट, एडवांटेजेस, मेरिट्स, कुछ भी वर्ड इनमें से यूज किया जाए तो पॉइंट सेम होंगे. ठीक है. सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स या लिमिटेशंस, तो पॉइंट्स सिमिलर होंगे. क्लियर? Yes, sir. तो ये ध्यान रखना है. ऐसा नहीं हो कि भाई यहाँ पे तो मैंने वर्ड यूज किया कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्जाम में आ जाए फीचर्स ऑफ, एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, आपको लगे ये तो पढ़ा ही नहीं था. तो ये सभी टॉपिक्स के लिए थ्रू आउट द सेशन आपको बता दिया है. दीज आर इंटरचेंजेबल वर्ड्स. फर्स्ट इज ग्रुप एक्टिविटी. एज वी डिस्कस इन द डेफिनेशन, कुछ बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, प्लीज ट्राई टू कंट्रोल इट. Where individuals working in groups. ठीक है. As I said, there are so many individuals working in any organization. Now, each of these individuals may have different emotions, different feelings, different personal goals, right? But when they come together, cold किसको हो रहा है? माधव भाटिया. माधव, आपका म्यूट कर रहा हूं मैं. आपको कोल्ड हो रहा है? No, sir. किसको हो रहा है? बेटा किसी की कफिंग की और साउंड्स आ रही हैं लगातार. ये कफिंग की आवाज आई ना, किसकी आई? माधव. Sir, Madhav Bhatia. ओके माधव, अभी आपको म्यूट कर रहा हूं. आपको कुछ बोलना हो तो रेज हैंड पे क्लिक कर देना या बाद में ग्रुप पे क्वेरी डाल देना. Okay, let's continue. So each individual may have different needs, aspirations, interests, feelings, emotions, capabilities, but when they come together to work as a team, it becomes very important to reconcile or integrate their individual needs, emotions with that of the organizational goals. So it is, you can understand from this how important it is to manage well and how difficult it may be to manage, because each individual is so different, but we have to make them work together as a team. Clear? Yes, sir. Next point is pervasive. You must have heard the phrase God is all pervasive. What does that mean?
तो सबके साथ सेम है। Spreading. That God is everywhere, right? That God is everywhere. So pervasive means, when we say management is pervasive, it means just a second. Yes, Hiya, you wanted to say something? नहीं सर, वो डिस्कशन के लिए ही। हाँ बोलो, अभी इस पॉइंट पे कुछ बोलना है? नहीं अच्छा, ओके, हाँ, so pervasive, God is everywhere. When we say God is pervasive, it means God is everywhere. So pervasive management is pervasive means management is required everywhere in our daily lives also. When we talk in context of business, it is required in all types of organizations, whether it is army, whether it is school, whether it is college, whether it is a restaurant, whether it is a hotel, whether it is a factory, all types of organizations. Then organizations of all sizes, चाहे स्मॉल स्केल पे हो चाहे बिग स्केल पे हो. अगर हम एक रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं तो एक छोटे से ढाबे में भी मैनेजमेंट की जरूरत है, एक मिड साइज रेस्टोरेंट में भी जरूरत है, एक 3 स्टार होटल में, 5 स्टार होटल में भी जरूरत है, और एक बड़े रिजॉर्ट में भी जरूरत है. सो मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ऑल साइजेस. Then organizations everywhere in the world, whether in Delhi, in Mumbai, in Rohtak, in Agra, wherever. So wherever the organization may be, everywhere all organizations require proper management, right? Yes, sir. बेटा Yes, जिसको sir. भी कोल्ड का हो रहा है खुद ही म्यूट कर लो प्लीज, डोंट मेक मी फाइंड आउट. खुद ही म्यूट कर लो. Yeah. Utkarsh. Manu. Okay, I am muting a few people now. Let's see if this solves the issue. Okay. Then next is goal oriented. Pervasive point is clear. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Next is goal oriented. The purpose of management. Why do we need to manage the activities of an organization properly? So that the To goals achieve of the organization can be achieved. So that the purpose, the objectives of the organization can be achieved properly. So management is required to achieve the goals. It is goal oriented. Whenever we manage any activity, we manage it in such a way that our goals are achieved. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And this thing we have to keep in our mind. Whenever we start doing anything, before starting anything, the purpose of doing that thing or that activity should be very clear in our mind. For anything and everything, जब भी कुछ भी करो, करने से पहले ये सोचो कि इसका पर्पस क्या है. कई बार क्या होता है, बहुत सी एक्टिविटीज लोग बिना उसका पर्पस सोचे समझे जाने और करते चले जाते हैं, और फिर जब पर्पस ही क्लियर नहीं है तो वो एक्टिविटीज गलत भी होती हैं, कई बार गलत तरीके से भी की जाती हैं. अगर पर्पस क्लियर होगा तो हमारे माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी और हम हर एक्टिविटी को बहुत अच्छे से करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, if I ask you what is the purpose of any test, any exam, you have unit test, you have class test, what is the purpose of these tests? सर की पता लगा पाए कि कितना लर्न हुआ है और कितना समझ आया है. Very good. That is the main purpose. आपके Check our अपने knowledge. सेल्फ असेसमेंट के लिए, कि आपको टेस्ट के बेसिस पे पता चले कि अच्छा जो मैंने टॉपिक पढ़े थे इनमें से कितना मुझे अच्छे से समझ आ गया, फर्स्ट थिंग, और दूसरा मैं उसे कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता हूं या कर पाती हूं आंसर की फॉर्म में. और अगर कहीं पे शॉर्टकमिंग्स हैं तो उनको आप इंप्रूव करने के लिए फर्दर प्रिपरेशन कर सको और वो कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए उस करेक्शन के थ्रू, उस इंप्रूवमेंट के थ्रू, राइट.
दैट इज द पर्पस। Yes. अगर ये पर्पस सब बच्चों के माइंड में रहेगा क्लियर, देन whether there is invigilator in the room or not, no one will cheat, because they know if they cheat they are cheating themselves, क्योंकि फिर उन्हें पता ही नहीं चल पाएगा उन्हें कितना अपने दम पर आता है और कहां पे इंप्रूवमेंट का स्कोप है, इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो पता ही नहीं चल पाएगा अगर चीट करेंगे तो ये पर्पस क्लियर ना होने की वजह से many students they try to cheat in the exams. अगर पर्पस क्लियर होगा they will never, अल्टीमेटली अपने खुद के साथ चीट कर रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए वीक रह जाएगा। A student scoring let us say 100% marks with unfair means will never be confident about his concepts. On the other hand, दूसरा स्टूडेंट जिसके बेशक 70% मार्क्स आ रहे हैं लेकिन वो पूरे 70% अपने दम पर हैं, उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, उसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी लाइफ में, और वो लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा हमेशा। ये हमेशा याद रखना। तो पर्पस क्लियर हो तो हम एक्टिविटीज, हमारी एक्टिविटीज ज्यादा मीनिंगफुल हो जाती हैं, राइट? Similarly, if I ask you what is the purpose of education, what is the purpose of learning? Anyone? अच्छा, ये बंद कर दो। Yes, sir. I'll have to mute you now. क्या हुआ था ये? सर वो एक्चुअली फोन आ गया था माधव का, वो क्या है शायद अनम्यूट कर दो। उसको साइलेंट पे कर लो बेटा फोन को। यस सर, वो माधव गोपाल का आया था। हाँ, जिसका भी आया है आप साइलेंट पे करके, क्लास में जब बैठो तो साइलेंट करके बैठा करो फोन को। ओके सर। ठीक है, ताकि बीच में वो बजे नहीं। माधव को अनम्यूट कर दिया है मैंने, अब और किसी की रिक्वेस्ट मत एंटरटेन करना इसकी। ओके सर। ओके, सो what was I saying? What is the purpose of education? What is the purpose of learning? Tell me. So develop values. Develop values, very good. To learn, to become a good human being, to learn good values, to learn good behavior. And the purpose of studying any subject is to learn its concepts. Yes, Madhav. Sir, the purpose of education is to attain certain skills so we can go out in the world and earn a living. Yes, that is one of the purpose. Whatever concepts we are learning, for example, right now we are studying management. What is the purpose of studying management? So that we can apply these concepts of management in our daily lives. Now, as well as when we start working, we apply these concepts in the organization in which we work, whether as a owner, whether as a manager, right? So that is the purpose of education. अगर ये ध्यान में रख के ये पर्पस हमारे माइंड में क्लियर रहेगा तो हम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान देंगे। तो हम कोई भी कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा आगे नहीं बढ़ेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिले। ठीक है, मार्क्स सेकेंडरी है, मार्क्स पर्पस नहीं है एजुकेशन का। मार्क्स तो सिर्फ एक मीन्स है आपके आगे बढ़ने का, बस नेक्स्ट स्टेज में, एजुकेशन की नेक्स्ट स्टेज में जाने का। इससे ज्यादा मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है। मेन जो मैटर करता है आपका कॉन्सेप्ट। आप कितने भी हाई मार्क्स लेकर जब जॉब्स के लिए जाओगे, अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी, it will be very difficult to get a job. On the other hand, if your concepts are very clear, even if your marks are not that high, you have average marks, people will welcome you. If your behavior is good, if your concepts are clear, you will be welcomed everywhere always. Remember that. Clear? Yes, sir. Goal oriented वाला point हो गया. Now next feature or characteristic is multi-dimensional. Management is multi-dimensional. What do we mean by this term multi-dimensional? So may I speak? Yeah. So multi-dimensional means that management works in
to different purposes or different things. For example, sir, management works for staff, management works for production and inventory. So like there are different aspects in management also. Right. So according to our book, there are three main dimensions of management. First is management of work. In every organization, there are various kinds of work that are to be done: purchasing, selling, financing, managing the human resource. So managing all these types of work is called management of work. Then second aspect is management of people. There are so many individuals working in groups in an organization, as we discussed earlier. So managing all the employees as individuals, we have to manage them at both the levels, at individual level also and as group also. Many a times the behavior of an employee or any person for that matter is very different as an individual and very different in a group. So we need to manage the employees both at individual level as well as in groups. Yes, Saksham. Saksham, you want to say something? जिनको भी मैं अनम्यूट करके रखता हूँ, इवन अदर्स, बट स्पेशली को अनम्यूट करके रखा है, मेक श्योर देयर इज नो बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस प्लीज. आई कीप सेइंग दिस अगेन एंड अगेन. हाँ सक्षम बोलो. सक्षम बोलो. यस सर, मैं ये कह रहा था कि सर मैं म्यूट हो गया था, बस ये बोल रहा था. कैसे हो गया था? मैंने तो अनम्यूट कर रखा था. सर पता नहीं सर, वो खुद ही हो गया था. अच्छा, ओके, यू आर बैक नाउ. And third dimension is management of operations. Managing the work as well as people together is management of operations. Clear? Utkarsh, you want to say something? You can note it down in rough and you can say it in the end of the session. Multi-dimensional clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Right. Now, next point. Tell me, can you see management? No, sir. It is No an sir. It cannot be. intangible force. Intangible force. But can you feel management? Yes. Yes sir. Yes. How? So, How? Sir, when we see the things being very organized. organized. Yes, Madhav. So I was not speaking. Okay, you can now. Okay, so management is intangible, sir. It's more of a qualitative asset. So you can't see qualities of a person, but you can feel that he's good at something. Right. So Here, like that, management is also a qualitative asset. right. Here you were saying something. So it's an intangible force. Yes. Intangible means it cannot be seen or touched, but it can be felt. How can we feel it? We can Sir, feel its when we see presence the- or absence, but how? Sir, when we see the things being very organized. Yes, And Madhav. sir, So when अच्छा, कौन बोल रहा था पहले? Sorry. someone else was speaking. sir, Tejas sir. Tejas, yes, Tejas. Speak. Sir, when we see the things being very organized and they are all in a proper manner and very good. Suppose you time walk into an office and you find that there is no one at the reception. Then somehow you ask for the person where जो आपको काम है उससे डीलिंग पर्सन कहाँ बैठते हैं. आपने पूछा 2-3 जगह पे, आप वहां पे पहुंचे, पता चला वो भी अपनी सीट पे नहीं है. थोड़ी देर बाद वो आते हैं, फिर आपको जो काम है उससे रिलेटेड फाइल वो ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रही है. What kind of an impression will you have about this organization? So disorganized. Very disorganized, very poorly managed.
Now Yes, sir. Yes, sir. now let us take another scenario that you walk into an office. The moment you go to the reception, there is a receptionist who asks you with a pleasant smile, "How can I help you?" आप बताते हो कि मुझे ये काम है, वो इमीडिएटली एक प्यून को असाइन करती हैं आपके साथ एस्कॉर्ट करने के लिए कि जहां पर आपका काम होना है वहां तक आपको ले जाने के लिए. You reach over there, the person concerned is there in his or her seat, immediately attends you. जो आपके काम से रिलेटेड फाइल है वो इमीडिएटली उन्हें मिल जाती है क्योंकि बड़े प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज रखी हुई हैं फाइल्स, और सब रीजनेबल टाइम में आपका काम कंप्लीट हो जाता है एंड यू रिटर्न वेरी हैप्पी. नाउ व्हाट इज योर इंप्रेशन? So the organization is well managed. Yes, very well Effective managed. management. Yes, very well managed. Disciplines are Right. So this is how we can feel the presence or absence of management. So management is intangible. Right. The next point, management is a continuous process. आपने एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया, लेकिन क्रिएट कर देना सफिशिएंट नहीं है. एक बार आपने अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया ऑर्गेनाइजेशन में, एक सिस्टम बना दिया प्रॉपर हर चीज का, that is not sufficient. You have to ensure कि वो सिस्टम मेंटेन रहे, चलता रहे. अदरवाइज क्या होगा, थोड़े टाइम बाद वो सिस्टम फेल हो जाएगा अगर आप मेंटेन करके नहीं रखोगे. इसीलिए हमने डेफिनेशन में कहा क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एन एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट. तो मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. कॉन्टिन्यूअसली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सब कॉन्टिन्यूअसली चलता रहता है. Next is dynamic. Dynamic means adapting to. Yes, which keeps changing. Right. So managers have to keep changing their plans, their policies, their decisions according to The business environment. According to the changing business environment. Yes. Now you realize the importance of doing business environment chapter earlier. Yes, sir. Yes, sir. अदरवाइज अब ये क्वेश्चन आ जाता कि व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट. ठीक है, तो ये इसलिए वो चैप्टर पहले करना जरूरी है क्योंकि उसकी रेफरेंस बार बार सभी चैप्टर्स में आती रहेगी. कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर? एनी डाउट एनीवन? No, sir. No, sir. Okay. No, sir. Now there are two terms in this definition that we have used, and the terms are effectiveness and efficiency. Yes, sir. Let us understand the meaning of these terms, effectiveness and efficiency. What is the difference? What do they mean? Timely completion. Can you see this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Timely completion of right work is effectiveness. I repeat, timely completion of right work is effectiveness. मतलब effectiveness में दो चीजें आ गई. टाइम पे अगर काम कंप्लीट हो रहा है और सही काम हो रहा है तो effective working है. ठीक है. Second thing, optimum utilization of resources. Optimum utilization of resources means minimum wastage, minimum cost. That is efficiency. Clear? Yes, sir. Yes, I sir. repeat, optimum Yes. utilization of resources means minimum wastage or minimum cost. That means efficiency. Is the meaning of these two terms clear? Yes, sir. Yes, sir. Now let's look at this example. Yes, sir. A group of workers, here please read this example. A group of workers are to produce 10 units of a product in a day using 20 units of raw material. Stop. Comment on Stop, effectiveness. Stop. 10 units of a product in a day. That is the goal. Using 20 units of raw material. Okay, that is the input. Now proceed. Comment on the effectiveness and efficiency in the following cases at the end of the day. Okay. First case, A produces 6 units of product.
How many units? 6 units. 6 units of the product using 12 units of raw material. Wrong. Using 12 units of raw material. What will you say about effectiveness and efficiency? Sir, efficient but ineffective. Ineffective, yes, sir. Others agree? Yes, sir. Why सर is it? इफेक्टिव बट इनएफिशिएंट Sir, क्योंकि टाइमली कंप्लीट तो हो रहा है काम Okay. बट इनपुट और आउटपुट मैच नहीं मतलब Let's see. He is ineffective but efficient. Effective but efficient. Why ineffective? Ineffective टाइमली क्योंकि काम कंप्लीट ही नहीं हुआ. 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी थी लेकिन 6 ही प्रोड्यूस हुई हैं. ठीक है. टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क था ना, टाइमली कंप्लीशन ऑफ राइट वर्क. एक दिन में 10 यूनिट्स प्रोड्यूस होनी थी, दैट वुड हैव बीन टाइमली कंप्लीशन ऑफ राइट वर्क, लेकिन उसने सिर्फ 6 यूनिट्स प्रोड्यूस करी तो इनएफेक्टिव हो गया. ठीक है. अच्छा, एफिशिएंट क्यों है? क्योंकि आप देखो 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी थी 20 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल के थ्रू, यानी एक आउटपुट यूनिट के लिए 2 इनपुट यूनिट लगनी चाहिए, और उसने 6 यूनिट बनाई है 12 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज करके, तो 2 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट ऑफ आउटपुट उसने यूज किया है. यस सर. तो रिसोर्सेज जिस प्रोपोर्शन में रिसोर्स यूज होनी चाहिए थी उसी रिसोर्स प्रोपोर्शन में हुई है, कोई वेस्टेज तो नहीं हुई. No, sir. No sir. So efficient. This point clear? Yes. Yes sir. Now second example. B produces 10 units of product using 22 units of raw material. What will you say? Sir, Effective but effective inefficient. plus inefficient. Effective but inefficient. Inefficient. Yes, absolutely right. Why effective? Because he is So producing. wastage of resources. Why effective? I am asking. सर गोल तो अचीव हो Goal Goal achieved. achieve हो Sir, गया. he achieved his goal. Yes, 10 यूनिट्स का टारगेट था डे में प्रोड्यूस करने का, वो हो गया, तो इफेक्टिव तो है, लेकिन उसने रॉ मटेरियल जरूरत से ज्यादा यूज कर लिया तो इनएफिशिएंट हो गया. 20 यूनिट्स में प्रोड्यूस करना था, 22 यूनिट्स यूज कर ली. क्लियर? Yes sir. यस सर Yes, sir. Third one. C produces 10 units of product using 20 units of raw material. सर Sir, बोथ effective इफेक्टिव and And Both, efficient sir. too. Absolutely. So C is efficient as well as effective. 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 क्योंकि टाइम पे काम पूरा भी हो रहा है और रिसोर्सेज भी जुडिशियसली यूज हो रही हैं. What will you say about D, who produces 8 units of product using 19 units of raw material? Sir, इनइफेक्टिव एंड ineffective, inefficient. Inefficient. Ineffective and inefficient. Yes, excellent. Ineffective and inefficient. Why? क्योंकि Sir, ना तो वो काम सर को ना यूज तो कर रहा गोल है, अचीव हो रहा है ना और तो ना काम ना और तो ना सर raw यूटिलाइज हो रहा है वो. हाँ, और 8 Optimal यूनिट्स कितने रॉ मटेरियल में प्रोड्यूस हो जानी चाहिए थी? 16. 16. 16. यूज कर ली 19. So ineffective as well as inefficient. I hope this makes the difference very clear between effectiveness and Yes efficiency. sir. इन Yes, दो sir. टर्म्स में Sir. जनरली बहुत कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को. Okay, so now we features are clear, efficiency and effectiveness are clear. Now Yes, Yes यस sir. सर yes, next sir. heading is Sir. nature of management. I told you earlier that whenever nature is asked, it is same as characteristics or features if not separately given in the book. But in case of management, nature is given separately. तो यहाँ पर नेचर में हम कैरेक्टरिस्टिक या फीचर वाले पॉइंट्स नहीं डाल सकते. ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इन चीजों का आपने. नेचर ऑफ मैनेजमेंट किस कॉन्टेक्स्ट से दिया हुआ है? देयर आर सम सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विच आर साइंस सब्जेक्ट्स. There are some subjects which are like dance, painting, music, which we call art subjects.
In which category do you put management? Nature is given from that point of view. Tell me, which category? Sir, it is Science. Yeah. It is a science, or is it an art? an art. Okay. Sir, Who says it is science? Art. Who says it is science? No one. अभी तो आवाज आ रही थी. चलो. सर नहीं वो आर्ट ही था. Art, sir, it is considered. Yes, sir. Art, sir, art. ओके. तो साइंस है या नहीं मैनेजमेंट, ये जानने के लिए पहले ये समझना जरूरी है साइंस होती क्या है ना? माधव बोलो. Sir, I think it's both science and art. Okay, let's see. What is science? Science is a systematically organized body of knowledge pertaining to a particular field of inquiry. For example, biology is a systematically organized knowledge about living beings. Physics is a systematically organized knowledge about non-living things. Chemistry is a systematically organized knowledge about various elements, their reactions, interreactions, right? So there are certain features of science. Now we will discuss those features, main features of science, and we'll see how far management satisfies them. First feature is science is a systematic body of knowledge. एक वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है. हर साइंस में अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं. जैसे फिजिक्स में आपने पढ़े होंगे लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़े हैं ना? यस सर. तो मैनेजमेंट में भी इस तरह से सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है. मैनेजमेंट के भी अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ थियरीज हैं जो भी हम आगे ड्यूरिंग द सेशन डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ये फीचर सेटिस्फाई हो रहा है. क्लियर? यस सर. नेक्स्ट फीचर ऑफ साइंस इज साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन. किसी भी साइंस में एक्सपेरिमेंटेशन इन्वॉल्व होती है, ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व होती है. कई बार एक्सपेरिमेंट कर करके कोई साइंटिफिक लॉ बनाया जाता है, कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल इवॉल्व होता है. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी ऐसे इवॉल्व हुए हैं. बहुत सारे मैनेजर्स के बहुत सालों के एक्सपीरियंस के बेस पे उन्होंने कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर करके देखे अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में, कुछ चेंजेस करके देखे कि उन चेंजेस से इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बढ़ती है या कम होती है. फॉर एग्जांपल, एक फैक्ट्री में लाइटिंग जो लाइट थी वो कम कर दी, तो देखा प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो गई. फिर उन्होंने रेड कलर की लाइट कर दी, ट्रांसपेरेंट रेड कलर का पेपर होता है ना, वो लगा दिया सारी लाइट्स पे. एंड दे ऑब्जर्व द एग्रेसिवनेस इन द एम्प्लॉइज इंक्रीज्ड. बड़े एग्रेसिव बिहेवियर हो गया एम्प्लॉइज का. फिर उन्होंने क्या किया, प्रॉपर नेचुरल लाइट भी का भी अरेंजमेंट किया कि फैक्ट्री में सब जगह नेचुरल लाइट भी सफिशिएंट आए और जहां पर नहीं आ रही है वहां पर ट्यूब लाइट्स वगैरह लगा के प्रॉपर लाइट हो. एंड दे रियलाइज्ड दैट प्रोडक्शन इंक्रीज्ड एंड एम्प्लॉइज वर जनरली काम एंड कंपोज्ड. तो इस तरह से एक्सपेरिमेंटेशन कर करके, ऑब्जर्वेशन कर करके मैनेजर्स ने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डेवलप किए हैं. ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन मैनेजमेंट में भी है. क्लियर? यस सर. लेकिन अब यहां पर एक लेकिन आ जाता है. इट इज डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एज एक्यूरेटली एज इन फिजिक्स और केमिस्ट्री. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम साइंस में, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen, when they combine they always make क्या? H2. Water. 1 molecule of water. ठीक है, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है कि अगर आप एम्प्लॉइज को प्रॉपर सैलरी दोगे तो वो अच्छे से काम करेंगे, उन्हें अच्छी वर्किंग कंडीशंस दोगे तो अच्छे से काम करेंगे. लेकिन
हमेशा उतना एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि हम ह्यूमन बिहेवियर से डील कर रहे हैं। हो सकता है ज्यादातर एम्प्लॉइज तो अच्छी सैलरी, अच्छी वर्किंग कंडीशंस मिलने पे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन देयर मे बी 1 or 2 people who, in spite of getting good salary, good working conditions, good working atmosphere, everything, but still they are not able to work well. क्यों? Maybe they have some problem in their personal life which is affecting their productivity. तो क्योंकि मैनेजमेंट में हम ह्यूमन बिहेवियर से डील कर रहे हैं और ह्यूमन बिहेवियर बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, समटाइम्स द रिजल्ट्स मे नॉट बी exactly the same for everyone in all the situations. तो ये वाला जो फीचर है एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन पार्टली सेटिस्फाई होता है. यस, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन, बट द कॉज एंड इफेक्ट is not as exact as in case of natural sciences. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Next feature of science is universal validity. Scientific principles are valid everywhere. इंडिया में, अमेरिका में, जापान में, कहीं पे भी चले जाओ, हर जगह लॉ ऑफ ग्रेविटी है. कोई भी चीज ऊपर फेंकोगे तो नीचे गिरेगी. ठीक है, तो वो हर जगह एप्लीकेबल है, हर जगह आप हमें दिखाई देगा. बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में ऐसा है क्या? No, sir. क्यों? Sir, because management changes from industry to industry and from people to people. Yes. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं. वैसे तो सब जगह अप्लाई होते हैं. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, पूरी दुनिया में कहीं भी, जैसे हमने एग्जांपल लिया, एम्प्लॉइज को अच्छी सैलरी देंगे, अच्छे से ट्रीट करेंगे, अच्छी वर्किंग कंडीशंस देंगे, दे विल वर्क वेरी वेल. बट may not always be true, because there are many situational factors also which affect the performance of employees. So this feature is also satisfied but not fully. So after discussing these 3 features of science, what is our net conclusion? It is a science. It is a science. It is a science, but it is not an exact science. So which type of science is it? It is a social science. It is a social science. It is science, but it is social science. Clear? Social science. Yes, sir. Yes. Now we come to management as an art. Science तो है, ये तो देख लिया. Art है या नहीं? आर्ट क्या होती है? आर्ट सिग्निफाइज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड पर्सनल स्किल्स टू ब्रिंग अबाउट डिजायर्ड रिजल्ट्स. तो आर्ट में पर्सनलाइज्ड होता है सब कुछ, पर्सनल स्किल्स होती हैं कुछ, उनकी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है. ठीक है. फर्स्ट फीचर ऑफ आर्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज. अब यहां पर ना आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा वर्डिंग के बारे में. फर्स्ट पॉइंट साइंस में भी ऐसा ही कुछ था, नॉलेज से रिलेटेड, लेकिन उसकी वर्डिंग क्या थी? Systematic body of knowledge. Systematic body of knowledge. Remember, साइंस में जब आप लिख रहे हो तो आपको वर्डिंग यही लिखनी है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. आर्ट में जब लिख रहे हो तो लिखना है एग्जिस्टिंग ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज. मतलब सेम है दोनों का, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब आर्ट की बात करेंगे तो हम लिखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, और जब साइंस की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? Systematic body of Systematic knowledge. knowledge. Yes, very good. तो एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, हर आर्ट फॉर्म में भी एक नॉलेज, सिस्टमैटिक नॉलेज होती है हर आर्ट की. अगर आप म्यूजिक सीखते हो तो म्यूजिक में आपको सुरों का ज्ञान होना चाहिए, सुर ताल, इसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए आपकी, तब आप म्यूजिक में अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो. सिमिलरली अगर आप डांस सीखते हो तो आपको डांस की डिफरेंट पोस्चर्स होते हैं, मुद्राएं, उनकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है. अगर आप पेंटिंग सीखते हो, पेंटिंग करते हो, तो कलर्स, बेसिक कलर्स, फिर डेरिवेटिव कलर्स, कलर कॉम्बिनेशंस, इन सब की आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए. तो हर आर्ट में एक थियोरेटिकल सिस्टमैटिक नॉलेज होती है.
मैनेजमेंट में भी हमने डिस्कस किया, इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, टेक्निक्स हैं, तो इसकी भी एक सिस्टमैटिक नॉलेज है, ठीक है। सो दिस फीचर इज फुली सेटिस्फाइड। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट फीचर ऑफ आर्ट इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स। आप लोगों में से म्यूजिक में किस किस का इंटरेस्ट है? Sir, mine. Sir, mine. मोस्टली लोगों का होता है। क्या Yes, आप sir. किसी सॉन्ग को सुनकर इसका आइडिया लगा लेते हो कि उसका सिंगर कौन है? Yes, sir. Yes, sir. कैसे? सर आवाज से। आवाज से। आवाज में इतना डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि जब सिंगर्स गाना गाते हैं तो थोड़ा सा जिस एक्टर के लिए गा रहे हैं उसके हिसाब से अपनी आवाज को मोल्ड भी कर लेते हैं, लेकिन मेन क्या होता है, हर सिंगर का अपना एक स्टाइल होता है गाने का। Style. हर आर्टिस्ट का, हर सिंगर का, हर डांसर का कुछ सिग्नेचर होता है, जिसे हम कहते हैं सिग्नेचर स्टेप या सिग्नेचर एक होते हैं जो उसका यूनिक होता है, ठीक है। जैसे किशोर कुमार जब गाते थे तो उनकी यूडलिंग बड़ी फेमस थी, गानों के बीच में यूडलिंग करना, मस्ती में गाना, ठीक है। मिक्का अगर गा रहा है या हिमेश रेशमिया गा रहा है तो वो नेजल साउंड आएगी सिंगिंग में। तो हर सिंगर का अपना एक पर्सनलाइज स्टाइल है। नॉलेज तो सबको वही है, म्यूजिकल नोट्स वही हैं, सेम सुर सेम ताल की नॉलेज सबको है, लेकिन फिर भी हर किसी का उस नॉलेज को यूज करने का तरीका अलग है। तो दैट मींस पर्सनल, दैट इज व्हाट वी कॉल पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स। हर कोई उसे अप्लाई अपने तरीके से करता है, जिससे कि हम पहचान पाते हैं। जिनको पेंटिंग का शौक होता है, आर्ट का शौक होता है, वो पेंटिंग देखकर आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन से फेमस आर्टिस्ट की पेंटिंग है ये। इसी तरह से अगर आप शैडो फॉर्म में डार्क स्टेज पे अलग से लाइट नहीं है, आपको एक शैडो डांस करती हुई दिख रही है, तो दूर से हम बता सकते हैं कि ये गोविंदा डांस कर रहा है या ऋतिक रोशन डांस कर रहा है। अगर सपोज 3 डांसर्स हैं, गोविंदा, ऋतिक रोशन, ठीक है, और तीसरा धर्मेंद्र जी, तो आई थिंक सब बिना शक्ल देखे भी पहचान लेंगे हु इज द डांसर। Yes, sir. तीनों का यूनिक स्टाइल है डांसिंग का अपना अलग अलग, राइट। ये बेटा म्यूट कर लो, जिसकी भी डिस्टरबेंस आ रही है ये म्यूट कर लो खुद को। इट डजंट लुक नाइस, मुझे बार बार बीच में म्यूट करना पड़े। राइट, गुड। सो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स मींस हर एक का अपना एक डिफरेंट स्टाइल है। थर्ड फीचर, कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। कोई भी आर्ट जितना प्रैक्टिस करते जाओ उतनी ज्यादा इंप्रूव होती जाती है। लता मंगेशकर, क्या एज हो गई होगी लता मंगेशकर की? एनी आइडिया? सर 80, 90. 80s या 90s है ना, नियर 90 होगी शायद। और आज की डेट में भी उनको जब इंटरव्यू किया जाता है तो वो पूछते हैं लोग कि भाई आप रियाज करती हो, तो वो कहती हैं हाँ रियाज तो बिल्कुल करती हूँ। कितनी देर करते हो? तो आपको आंसर मिलेगा 3-3, 4-4 घंटे एवरी डे। हम बड़ा फैसिनेट हो जाते हैं जब हम अक्षय कुमार को कोई स्टंट्स करते हुए देखते हैं या टाइगर श्रॉफ को कोई स्टंट्स करते हुए देखते हैं मूवीज में, लेकिन अगर आप उनसे पूछो उनका रूटीन, अक्षय कुमार अपना रूटीन बताते हैं, ही वेक्स अप 4 in the morning, और उसके बाद उठ के अपना डेली रूटीन से फ्री होके 2 घंटे का उनका मिनिमम रेगुलर वर्कआउट है, एक्सरसाइजिंग, जॉगिंग, रनिंग, ऑल दिस। उसके बाद फर्दर ड्यूरिंग द डे कितना उनका टफ रूटीन रहता है, एंड स्ट्रिक्टली नॉन अल्कोहलिक, नॉन स्मोकर, और रात को वो टाइमली सो जाते हैं, 8-9 बजे सो जाते हैं। तो इस तरह का डिसिप्लिन लाइफ में होता है, और कॉन्टिन्यूअसली प्रैक्टिस करते हैं अपने अपने आर्ट फॉर्म की। जो अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, चाहे वो एक्टर्स हैं, चाहे वो डांसर्स हैं, चाहे सिंगर्स हैं, दे प्रैक्टिस अ लॉट एवरी डे, बिकॉज विद प्रैक्टिस यू कीप इंप्रूविंग, देयर इज नो अपर लिमिट। कोई ऐसी अपर लिमिट नहीं है जिसको आपने अचीव कर लिया कि भाई अब इससे बेटर हम नहीं हो सकते। नो, with practice, continuous practice, you keep improving. Same is the case with management. मैनेजमेंट में भी हर मैनेजर का अपना स्टाइल होता है मैनेज करने का। सेकंड पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था,
और जितना आप मैनेज करते जाते हो, जितना आपको मैनेजरियल एक्सपीरियंस होता जाता है, उतनी आपकी मैनेजरियल स्किल्स इंप्रूव होती जाती हैं। ठीक है। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी मतलब कुछ नया क्रिएट करना। अगर आप किसी सिंगर को कहो ना कि आप अपना ही गाया हुआ गाना दोबारा गा दो, तो दूसरी बार में कुछ ना कुछ नया आ जाएगा, कहीं बिल्कुल सेम नहीं होगा पहले की तरह। There will be a slight difference somewhere. That means something new gets created. आप इमेजिन करो, बेसिक्स म्यूजिक में बेसिक कितने नोट्स होते हैं, म्यूजिकल नोट्स होते हैं, कितने सुर होते हैं? 7। सारे गामा पाधानी। ठीक है, ये बेसिक 7 सुर है, फिर इसमें हाई स्केल लो स्केल हो जाता है। लेकिन इन 7 सुरों के कॉम्बिनेशन से, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन से आज तक थाउजेंड्स ऑफ ट्यून्स, म्यूजिकल मेलोडीज बन चुकी हैं और बनती जा रही हैं। दैट इज क्रिएटिविटी। सेम नॉलेज को यूज करके कितनी नई चीजें क्रिएट होती जाती हैं। मैनेजमेंट में क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है क्या? Yes, sir. कैसे? So different industries have different styles of management. Like in IT industry, we have seen a new type of management where employees' experience in the office is given a very big priority, which has changed from past years. Right. Managers. And sir, like in yes, continue. Yes, so sir, like in factories and production, safety and other things are given more priority because it's a life-threatening job. Yes. और मैनेजर्स का मेन काम क्या होता है? डिसीजंस लेना। They have to take decisions, so many decisions, and decision taking is actually decision making. You have to create a decision. एक सिचुएशन आपके सामने आई, अब उस सिचुएशन से कैसे डील करना है, आपको वो डिसीजन लेना है। वो डिसीजन लेना क्रिएटिव काम है। आप एक डिसीजन क्रिएट करते हो। Every time you have to take a decision, you are creating a decision based on the situation, based on your knowledge and intelligence, right? So creativity भी बहुत ज्यादा involved है मैनेजमेंट में। Do we agree? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आर्ट के तो तीनों फीचर्स पूरी तरह से सेटिस्फाई होते हैं, तो पूरी तरह से मैनेजमेंट आर्ट तो है। ठीक है, तो हम किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं? मैनेजमेंट इज बोथ अ साइंस एंड एन आर्ट। The systematic knowledge of management is a science, and application of that knowledge is an art. ठीक है, just like a Yes, doctor, when a doctor studies medicine, that is science, medical science. But when a doctor uses that knowledge to treat the patient, means applies that knowledge, it is an art. So science, management is also both science and an art. Although it is not an exact science, it is a social science. Are we clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next is nature में 3 चीजें हैं। एक मैनेजमेंट एज अ साइंस, दूसरा मैनेजमेंट एज एन आर्ट, थर्ड इज मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अच्छा, इससे पहले एक ये लाइन पे ध्यान दो। It is said about management that management is oldest of arts and youngest of sciences. मतलब? Sir, the statement means that from very early of the human civilization, management was needed for different tasks, but Right. now we have seen it as a science because it has been we are being taught management. It was not Right. taught before. Now Yes. it's like more of a course. Yes, very good. It is oldest of the arts क्योंकि जब से human beings हैं, ग्रुप्स में रहते हैं, तब से मैनेजमेंट तो चल रही है। अपनी एक्टिविटीज को मैनेज तो सब करते ही हैं, ग्रुप्स को मैनेज करते ही हैं। तो ओल्डेस्ट ऑफ आर्ट्स, यंगेस्ट ऑफ साइंसेस, लेकिन कैसे मैनेज करना है, क्या गाइडलाइंस हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, वो थियरी की फॉर्म में अभी पिछले कुछ सालों से लिखा जाने लगा है, पिछले में भी 50-100 ईयर्स से। तो इसलिए इट इज यंगेस्ट ऑफ साइंसेस, क्योंकि उसकी सिस्टमैटिक थियरी जो है वो पिछले कुछ सालों में इवॉल्व हुई है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Everyone? Yes, sir. Okay, we stop our discussion for today over here,
and we'll continue with management as a profession in the next class. Now, if anyone has any doubt, they can click on raise hand. No one? Okay. So thank you, everyone. Thank you, sir.